समझ नहीं आ रहा, क्लास होंगी आगे नहीं होंगी। अरे हो गया, हमको तो क्या है एक्चुअली कि हमारी रेगुलरिटी हम थोड़ा सा मेंटेन रखने चाहते हैं, क्योंकि क्लासेज की रेगुलरिटी की बार डिस्टर्ब हुई तो फिर वो होती ही जाती है, फिर ना टीचर का इंटरेस्ट बनता है, समझ रहे हो ना, और ना स्टूडेंट की रेगुलरिटी रह जाती है। मुझ तो काफी तगड़ा रखे हैं सर। लोग कह रहे हैं कि अच्छी लग रही इसमें। नहीं सर, सही अच्छा लग रहा है। तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, तो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम, है ना। तो आज की प्रॉब्लम थी सिंगल फेज फुल कन्वर्टर। ओके, तो जो स्कीमेटिक है, फर्स्ट वी स्टडी अबाउट व्हाट आर द कंडक्शन मोड। तो एक अगर रेजिस्टिव लोड है, ओनली रेजिस्टिव लोड, ओके, so in the case of resistive load only, what will be the condition? The output will be only for the positive half cycle and negative half cycle, and the remaining part for inductive case is not present here. Suppose if the load is inductive, then a part of load part of the voltage will also appear in the negative direction, but for resistance case it will not be present. Okay, so there are two different formulas during the continuous and discontinuous mode. This in this condition the current will rise from here and go down from here, okay, and again rise from here. So this is the discontinuous mode. However, if the load is very inductive and the current is nearly constant, so what will happen? Even when this switch is turned on, it will conduct until there is sufficient reverse bias. Okay, so in both the conditions there are two different equations for the voltage output of control rectifier. So in control rectifier, if the resistive case is there, okay, then this is the output V AVG. Okay, ये clear है ना? In case of highly inductive load, the average voltage will be, the waveform will be like this waveform. Okay, so in 90 degree exactly the output voltage will be 0. Okay, so what will happen? The VAVG in that case will be 2 Vm upon 5 cos alpha. In case of alpha equal to 90 degree, the average voltage will be 0. However, in case of alpha equal to 90 degree, this voltage is maximum. 1 plus means half of the maximum voltage. 2 Vm upon pi is maximum, and average voltage, half of the voltage will be available. Okay, so this is the equation. Now as we have mathematically known about the relationship of the alpha and V output, स्क्रीन दिख रही ना? हेलो, स्क्रीन दिख रही ना? यस सर दिख रही है। So the relationship between alpha and output voltage is given by this equation. Suppose now we are trying to control in case of resistive load using the intelligent control. So what is the first step? First step is to get the variables. Okay, so we will do a coding here. For what? For getting the alpha or duty cycle versus output voltage. Suppose here we want the alpha versus V output. The y axis is VO. Okay,
how the output voltage depends on alpha. Suppose this is the relationship, okay, ऐसे ही तो डिपेंड करेगा ना। तो ड्यूटी साइकिल का भी रिलेशन क्या होगा, ड्यूटी साइकिल का भी रिलेशन लगभग इसी टाइप का होगा, पर ड्यूटी साइकिल 1 तक वेरी होगी और अल्फा जो है तो कितने तक वेरी होगा, 360 डिग्री तक, ओके, और D1 तक वेरी होगा, क्लियर। और आउटपुट वोल्टेज वेरी होगा इस टाइप से। तो वी हैव दिस knowledge base, this is a knowledge base, okay. Now we want to get the database from this knowledge base, okay. तो इस knowledge base से हम database कैसे निकालेंगे, हम कोडिंग करेंगे, ठीक है। मतलब जनरली हम सिंपली भी निकाल सकते हैं, बट कोडिंग इज इजीएस्ट वे, ओके। तो यहाँ पे हमने कोडिंग बनाई है और आप बताता हूँ क्या कोडिंग है। Okay, so here you have a temp file here. See here, we are varying the alpha from 0 to 1 degree to 360 degree. Okay. Now, in terms of radian, what will be the value? This is the pi, and this is pi by 180 degree multiplied. Okay. So the alpha in the terms of degree will be 360 into alpha. Clear है शिवम? दिनेश? यस सर। तो हम रेडियन में निकालेंगे तो ये स्मॉल अल्फा है सपोज, ओके। नाउ इफ वी वांट टू गेट इन द टर्म्स ऑफ डिग्री, देन दिस इज द फार्मूला, ओके। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सपोज वी हैव द सिमुलेशन मॉडल। हमने सबसे पहले सिमुलेशन मॉडल एक बना लिया। सिमुलेशन मॉडल हमने ऐसा बनाया। तो सबसे पहले हम जब सिमुलेशन मॉडल बनाएंगे तो इसमें सिंपली ये चीज है, ओके। हम सिमुलेशन मॉडल बाद में समझाते हैं आपको। तो यहाँ सबसे पहले क्या किया है, ये कोडिंग, ठीक है। तो VM मतलब हमारा मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज सोर्स AC, उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 100 पीक वैल्यू, पीक मैग्नीट्यूड। तो एवरेज वैल्यू अब यहाँ पे हमने कौन सा लिया है, रजिस्टिव केस के लिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने डाल दिया है रजिस्टिव केस, ठीक है। तो एक कोड ये V एवरेज VM अपॉन पाई इंटू 1 प्लस कास अल्फा, बिकॉज कास जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमेशा रेडियन पे ही लेता है, ओके। तो यहाँ से अब जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज और अल्फा का रिलेशन क्या है, ये है। अब देखो कि जो ड्यूटी साइकिल है, अल्फा तो वेरी हो रहा, जैसा अल्फा वेरी होगा, अगर 360 डिग्री तक हम अल्फा वेरी करा रहे हैं, एक ट्रायंगुलर फंक्शन है, ठीक है, ये 360 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ड्यूटी साइकिल है वो कितना होगा, 1/180 ऑफ थीटा। जो अल्फा है, अल्फा सर आपकी आवाज कम आ रही है। हेलो, हाँ सर अब आ रही है, आवाज कम आ रही है। हाँ अभी आ रही है आवाज? हाँ सर अब आ रही है। हाँ, तो जैसे कि हमारा जो एंगल है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए जो सिग्नल है हमारा ये है, ओके, क्लियर। और हम जो ट्रायंगुलर सिग्नल ले रहे हैं, मतलब जो एंगल वेरी हो रहा हमारा, कितना वेरी हो रहा है, 0 to 180 और फिर यहाँ से 0 to 180, ठीक है। तो यहाँ पे जो ड्यूटी साइकिल, हम कोई भी ड्यूटी साइकिल लेंगे, यहाँ पे ड्यूटी साइकिल 1 होगा। 1 होने का मतलब क्या है, यहाँ 1/180 डिग्री। तो जो ड्यूटी साइकिल क्या होगी, ड्यूटी साइकिल इक्वल टू अल्फा बाई
180 डिग्री। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने क्या किया है, बिकॉज ये रेडियन पे है, अल्फा रेडियन पे है, तो हम रेडियन के हिसाब से पाई का डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा डी ट्राई, मतलब ड्यूटी साइकिल इन ट्रायंगुलर कैरियर। ठीक है, ट्रायंगुलर कैरियर में जो ड्यूटी साइकिल है वो कितना होनी चाहिए। सपोज कि अगर हमने 1 का लिया है, ठीक है, ये 0 टू ये 2 पाई है और ये पाई है, तो ड्यूटी साइकिल कितनी होगी यहाँ पे, ये 1 होने के लिए ये ग्राफ क्या कहलाएगा, ये होगा ना ड्यूटी साइकिल। अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या होगा 1/पाई। किसी भी एंगल थीटा पे क्या होगा, किसी भी एंगल थीटा या अल्फा पे ये होगा अल्फा/पाई। क्लियर है? तो ये जो हमने जनरेट किया ये क्लियर है। अल्फा अल्फा कैसे जनरेट करते हैं हम, एक सिंपली एक हम एरे बना रहे हैं, 1 डिग्री के उसमें मतलब 180 डिग्री तक जा रहा है और 180 डिग्री तक वेरी हो रहा, तो हम रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई बाई 180 डिग्री, और यहाँ पाई आ गया। अल्फा डिग्री के टर्म्स में क्या होगा, जो भी डिग्री आया तो उसमें हम रेडियन में है तो 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगर रेडियन में है तो जैसे पाई रेडियन है तो 360 बाई पाई होगा ना यहाँ पे, और ये थोड़ा सा मिस्टेक है, ये सही ना? क्यों शिवम? 360 डिग्री बाई 2 पाई। ठीक है, ये रेडियन पे हुआ, अब ये डिग्री में चेंज हो गया हमारा। क्लियर है? यहाँ पे मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज कितना है, Vm इक्वल टू 100। हमने यहाँ पे सिमुलेशन में जो AC सोर्स लिया है यहाँ पे 100 लिया हुआ है पीक मैग्नीट्यूड। ओके, तो ये हमने ले लिया। अब हम यहाँ पे क्या जनरेट करते हैं, Vm/पाई इंटू 1 प्लस कास अल्फा। अल्फा यहाँ से एरे बनाया है तो अकॉर्डिंग टू अल्फा क्या होगा उसका, ठीक है, ड्यूटी साइकिल। अब जो भी ड्यूटी साइकिल बनती है और वर्सेस एवरेज वोल्टेज, ये हमारा एक रिलेशन बन गया। और ये चूंकि दिस विल ऑलवेज गिव द रो मैट्रिक्स, तो ये जो डैश हमने लिया है ट्रांसपोज करके और कॉलम मैट्रिक्स में बनाया, तो यहाँ पे एक रिलेशनशिप आ गई है कि जब भी 0 फायरिंग एंगल है तो आउटपुट वोल्टेज इतना है। ठीक है, और जब भी 0.0056 है तो आउटपुट वोल्टेज इतना है। ड्यूटी साइकिल जब हमारी 1 हो गई, यहाँ पे ड्यूटी साइकिल जब हमारी 1 हो गई या फायरिंग एंगल पाई हो गया, तो उस कंडीशन में क्या हो गया, 1 - 1 आ गया ब्रैकेट में, तो 0 हो गया वो। ठीक है, यहां से इतना क्लियर हो गया शिवम? यस सर। तो यहाँ से हमने ये जो हमने एडिटिंग की है वेरिएबल, इस वेरिएबल से हमने एक एरे निकाला है कि डिपेंडेंसी ऑफ ड्यूटी साइकिल वर्सेस, मतलब जो ट्रायंगुलर का हम ड्यूटी साइकिल लेंगे और जो एवरेज वोल्टेज है वो कैसे डिपेंड कर रहा। तो अब हम इसका ग्राफ लेते हैं। जब हम इसको ग्राफ लेंगे यहाँ पे, तो ग्राफ कैसा आ रहा है कि ड्यूटी साइकिल जब ऐसे वेरी हो रही है तो आउटपुट वोल्टेज ऐसा वेरी हो रहा है। ओके, ये उसका एवरेज वोल्टेज का फार्मूले से निकाला गया है। ओके, ये चीज दिखा। तो अब हम इसका, ये हमें मिल गया ग्राफ। अब हम इसका क्या करेंगे, फजी बनाने के लिए, इसको फजी के टर्म्स में चेंज करने के लिए अब हम इसकी क्या करेंगे, एक तरह से क्लस्टरिंग करेंगे।
ठीक है। तो यहाँ से हमने क्लस्टरिंग करने के लिए सिंपली सपोज हम आपको एग्जांपल करके दिखा रहे हैं यहाँ पे, हालांकि यहाँ पे की हुई है। तो यहाँ पे जब आप क्लस्टरिंग करते हैं तो जब भी हम रेफरेंस वोल्टेज चेंज करेंगे तो हमें कौन सा रेफरेंस वोल्टेज के अकॉर्डिंग ये ड्यूटी साइकिल मिलनी चाहिए। ठीक है, हम जब भी वोल्टेज हमारा चेंज हो, जो भी वोल्टेज हो उसके अकॉर्डिंग एक हमें ड्यूटी साइकिल मिलनी चाहिए। ये हमारा फजी का इंटेलिजेंट कंट्रोलर ये करना चाहिए कि जब भी हम रेफरेंस वोल्टेज दिए कि 50, तो 50 के हिसाब से ये कि कहाँ पे ड्यूटी साइकिल दे देगा 0.3 पे। 30 अगर वोल्टेज हम रेफरेंस दे रहे हैं तो ड्यूटी साइकिल 0.5, ठीक है। यहाँ पे 20 पे अगर आ रहा है तो हमारा 0.6 हो जाना चाहिए। अगर 10 पे हम 10 वोल्टेज रेफरेंस दिए तो ये ड्यूटी साइकिल अपने आप चेंज हो जानी चाहिए कहाँ पे 0.75 पे। ओके, अब हम यहाँ पे क्लस्टरिंग करना पड़ेगा हमको इसको फजी में चेंज करने के लिए। तो हम सपोज कि हम लेते हैं कि यहाँ पे 5 पॉइंट्स हम लेते हैं, 5 सेंटर पॉइंट्स ऑफ मेंबरशिप फंक्शन। ठीक है, 5 सेंटर पॉइंट्स। तो एक यहाँ पे ले लिया हमने, एक जहाँ कर्वेचर ज्यादा है वहां पे ले लिया हमने, ठीक है, एक यहाँ पे ले लिया। ठीक, तो ये हमने लिया। अब इसको सेंटर मानते हुए, ठीक है, यहाँ पे ये टोटल हमारा मैक्सिमम आउटपुट है, यहाँ से हम पूरा क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब इसको सेंटर मानते हुए एक हमारा स्पेस हमने यहाँ बनाया, ठीक है। दूसरा सेंटर हम मानते हुए, इसको सेंटर मानते हुए हम दूसरा एक यहाँ से बनाते हैं, ठीक है। ये मतलब ये इसका बीच का पॉइंट है और यहाँ इसको क्रॉस करते हुए। तीसरा हमने इसको सेंटर लेते हुए एक ओवरलैपिंग हमने बनाया, तो ये एक बनाया यहाँ से, ठीक है, ऐसे। ठीक, फिर चौथा बनाया इसको सेंटर लेके और एक रेक्टेंगल हमने यहाँ बनाया, ठीक। और पांचवा कौन सा बनाया, इसको सेंटर लेके और यहाँ से बनाया। तो हमारा ये फजी का क्या हो गया, सैम्पलिंग क्लस्टरिंग हो गया। अब क्लस्टरिंग हो गया तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ये पीक पॉइंट यहाँ से पहला है तो यहाँ से हम ले लिए और यहाँ से एक लाइन है तो यहाँ सीधा यहाँ से यहाँ तक आ गया, ये 0.2 हो गया सपोज, ठीक है। क्लियर है। अब दूसरा ये वाला आया, ये वाला जो ये वाला है, ठीक है, और इसका पीक पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर। तो ये पीक पॉइंट यहाँ से लिए और यहाँ तक आया, ठीक, 0.5 तक। ऐसे ही ये वाला आया, इसका पीक पॉइंट यहाँ पर है तो इसको हम ये किए, यहाँ से पीक पॉइंट इसका और यहाँ से प्रोजेक्ट किए, ठीक है, इसका पीक पॉइंट यहाँ पर। ऐसे ही हमने इसको, ये पूरा जो है इसको हमने लिया, इसका पीक पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ, तो यहाँ बनाया ऐसे और यहाँ पे बना लिया ये पॉइंट लास्ट, ठीक है। अब ये क्या हो गया, वेरी लो, लो, मीडियम, हाई, वेरी हाई, ये 1 तक बदल रहा है, ठीक है। इसके मेंबरशिप ग्रेड है 1। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैसे होगा, ये हमारा 63 64 करीब आउटपुट वोल्टेज आता है। काश अगर वो 1 प्लस काश अल्फा इक्वल टू 2 हो जाए तो मैक्सिमम 64 वोल्ट आता है 100 वोल्ट पीक के लिए। दिनेश, ये समझ में आ रहा ना? यस सर। तो यहाँ पे ये जो हमारा ये पहला स्क्वायर हमने लिया ये, और इसका सेंटर यहाँ पे लिया, क्योंकि यहाँ से इससे ज्यादा तो आउटपुट वोल्टेज है नहीं, हम पूरे फजी स्पेस सिर्फ इतना ही ले रहे हैं। तो इसका हमारा जो एक क्वाड्रेंट है वही दिखेगा केवल इस वाले रेक्टेंगल का, और सेंटर यहाँ पर है। तो इसका जो ये पोर्शन है वो कहाँ आ गया, ये, ठीक है। अब ये वाला जिसका सेंटर है जिस रेक्टेंगुलर का, तो ये इस रेक्टेंगल का सेंटर है ये वाला। तो यहाँ पीक वैल्यू हमने ये ले लिया और यहाँ से यहाँ तक गया और ये वाले से यहाँ तक गया। अब ये वाले को लेते हैं, ये वाले रेक्टेंगल को, ये वाले को,
तो यहाँ प्रोजेक्ट करेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ प्रोजेक्ट किए, तो ये वाला आया, सेंटर पॉइंट कहाँ है इसका, ये है सेंटर पॉइंट। तो सेंटर पॉइंट हम यहाँ प्रोजेक्ट कर लिए, ठीक है, और ये बनाया। फिर उसके बाद ये वाले में आएगा और सेंटर पॉइंट यहाँ पे, तो सेंटर पॉइंट यहाँ पे आएगा पीक वैल्यू, ठीक है, और ये यहाँ पे आया, और फिर एक ये ऐसा। तो ये आपका फजी क्लस्टरिंग से आपने मेंबरशिप फंक्शंस बना लिए, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो हमने बनाया था वो ये था, यहाँ पे 0, 0.25, 0.5, 0.75 और 1, और यहाँ पे वैसे ही उसी प्रकार का वो आया है, ठीक है। तो 0 10 पर आया, 32 पे आया, 54 पे आया और 64 पे आया, ठीक है। सॉरी ये 52 होगा, ठीक है, 52, ठीक है, सॉरी नहीं 10 का ये है, 54 का रहेगा, ठीक है। फिर इससे 55 से थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो अब ये हमारे मेंबरशिप फंक्शंस बन गए। उसके बेस पे हमने क्या किया, सबसे पहले एक फजी स्टेज बनाया, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जब भी हम इनपुट वोल्टेज दें, मतलब रेफरेंस वोल्टेज ये वाला, तो हमें आउटपुट ड्यूटी साइकिल ये मिले, ठीक है। तो हम कंट्रोलर में क्या करेंगे कि वोल्टेज का कॉलम फर्स्ट में और ड्यूटी साइकिल कॉलम सेकेंड में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये इतना बन गया। अब हम इसको फजी के टर्म्स में एक बनाएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ से हम क्या किए, हमारा यहाँ पे उसी चीज को हमने यहाँ बना के रखा हुआ है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ दो टाइप के फजी हैं, एक ट्रेनेबल फजी जो ट्रेन करके बनाया जाता है, एक डिजाइन किया जाता है मेंबरशिप फंक्शन वगैरह मैनुअली, ठीक है। तो हम पहले मैनुअली डिजाइन करते, दोनों का परफॉर्मेंस बाद में चेक किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं वही मेंबरशिप फंक्शन बनाए गए हैं पूरे, 64 है यहाँ पे देखिए, ये वैल्यू है 54, ठीक है, 64 54, ये 0 से 10, और ये पूरा वही वैल्यूज है, ठीक है। शिवम एंड त्रिनेश एंड स्टूडेंट, Yes, sir. हेलो, यस ठीक है। तो यहाँ पे जो ड्यूटी साइकिल का है वो तो लीनियरली वेरी हो रहा है, और आउटपुट वोल्टेज लीनियर नहीं वेरी होता, ठीक है ना, क्योंकि वो फंक्शन ही ऐसा है। तो यहाँ जो इनपुट वोल्टेज है, डिफरेंस वोल्टेज, ये हम देंगे, हमारी ड्यूटी साइकिल ये मिलेगी, ठीक है। जब भी जैसा वेरी होगा इनपुट वोल्टेज में, उसी टाइप से ये होगा, ठीक है। तो सेम यही जो हमने ये वाला जो क्लस्टरिंग करके हमने मेंबरशिप फंक्शन बनाया है, सेम उसी को हमने यहाँ पर डिजाइन किया है, ठीक है, सेम उसी को, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए, फिर हमने रूल्स दिया। रूल्स क्या दिया, रूल्स ये है कि जब भी हमारा आउटपुट वोल्टेज बहुत कम हो तो ड्यूटी साइकिल बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो ये रेफरेंस वोल्टेज वेरी लो, देन ड्यूटी साइकिल इज वेरी हाई। दूसरा क्या है, जब ड्यूटी साइकिल रेफरेंस वोल्टेज लो हो तो जो ड्यूटी साइकिल है वो हाई होनी चाहिए, ठीक है, मतलब थोड़ा सा वेरी हाई से थोड़ा सा कम। तो ये वाला केस हो गया। फिर मीडियम हो, आउटपुट वोल्टेज मीडियम रखना है हमको, रेफरेंस वोल्टेज मीडियम है तो हमारा ड्यूटी साइकिल भी मीडियम रहेगी। फिर रेफरेंस वोल्टेज हमारा ज्यादा है तो हमें ड्यूटी साइकिल क्या करनी पड़ेगी, कम रखनी पड़ेगी, तो ये लो में आ गया। और फिर वेरी हाई है अगर हमारा रेफरेंस वोल्टेज, तो हमारा जो ड्यूटी साइकिल है वो बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे रूल्स बन गए। उसके बाद हमारा जो रिलेशनशिप है वो ये आया, ये देखिए। तो जो सेम जो ग्राफ हमने यहाँ क्लस्टरिंग करके जिस ग्राफ से हमने पूरे फजी रूल जनरेट किए थे, तो लगभग वैसा ही रूल आउटपुट यहाँ मिल रहा है, ठीक है। स्टूडेंट्स, इट इज क्लियर।
ये देखिए ड्यूटी साइकिल जो है यहाँ पे देख लीजिए, ड्यूटी साइकिल यहाँ पे है, नीचे है यहाँ पे, लेकिन चूंकि हमको रेफरेंस वोल्टेज हम इनपुट में ले रहे हैं और ड्यूटी साइकिल वाई एक्सिस में, इसलिए ये ऐसा आ रहा है। ठीक है वही फंक्शन सेम, आप इसको देख लीजिए। ओके, तो अब इसको आपने एक्सपोर्ट किया, ये एक्सपोर्ट करने के बाद आपने इसमें सेव कर लिया। ठीक है, ये क्लियर। अब ये तो कंप्लीट हो गया, फजी स्टेज आपने बना लिया। स्टेज बनाने के बाद नेक्स्ट क्या है यहाँ पे कि जब पॉजिटिव साइकिल है, पॉजिटिव साइकिल तो ग्रेटर देन होगा 0 से, और उस कंडीशन में ट्रायंगुलर जो फजी से जो इनपुट रेफरेंस वोल्टेज हमने दिया वी रेफरेंस, ठीक है वी रेफरेंस दिया, उसके अकॉर्डिंग इसने ड्यूटी साइकिल डी ट्राई दे दिया। ठीक है ना, और ट्रायंगुलर के साथ में इसने क्या किया, जब भी ट्रायंगुलर से ट्रायंगुलर बड़ा होगा इस ड्यूटी साइकिल से तो वहां पल्स मिलेगी, और इसके साथ में हमने एंड किया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो उसका नाम था उस फजी फाइल का, हमने उस फजी फाइल का नाम यहाँ पे दे दिया। ठीक है, सेम वही फाइल जो भी यहाँ पे हम आपको दिखा रहे थे, सेम वही फाइल, ये यही नाम करेक्ट हम ले जाके इस फाइल के अंदर उसको रख देते हैं। ठीक है, ये क्लियर स्टूडेंट्स, ये क्लियर है। तो अब यहाँ पे हमारा क्या बना, पूरा एक कंट्रोलर हमारा बन गया। अब हम इसकी देखते हैं परफॉर्मेंस। तो ये कंट्रोलर जब हमने बना लिया तो इसकी हम परफॉर्मेंस देखते हैं कि क्या आती है। यहाँ पे हम ये रेफरेंस वोल्टेज 30 दिए हैं, यहाँ से हम जो आउटपुट वोल्टेज जो भी निकल रहा है, तो क्योंकि वो पल्स रिपल्ड फॉर्म में होगा, उसका हम इंटीग्रल करके और पूरा जितना भी टाइम है, जितने टाइम तक सिमुलेशन चला है, उसके साथ में हम एवरेजिंग कर लेंगे। तो 1/इंटीग्रल डिवाइड बाय टोटल टाइम, तो हम जब ये करेंगे तो एक एवरेज वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे सिग्नल्स जो हैं मिल रहे हैं। ये देखिए जो ये हमारा इनपुट साइनोसॉइडल सिग्नल है, वेव फॉर्म दिख रहा है आपको? स्टूडेंट्स हेलो, हाँ सर दिख तो रहा है, अब तो कुछ नहीं दिख रहा सर, लेकिन अब तो चला गया। हाँ सर आ गई वेव्स। ये फजी से कंट्रोल किया हुआ है ना, अभी दिखाएंगे। ट्रेनेबल फजी जब हम यूज करेंगे तो तुम्हारी जो एरर है ये कम हो जाती है। उसको हम जब ट्रेन करते हैं तो ट्रेन करने में बहुत ज्यादा अच्छा परफेक्ट ट्रेनिंग होती है उसकी। ठीक है, तो ये तो हमने रूल बनाया है अपने से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए T1 और T4 में ये वाली पल्स जा रही है। ठीक है, और T2 और T3 में ये वाली पल्स। ठीक है, तो 0 to 2 पाई ये है, और ट्रायंगुलर जो है, ट्रायंगुलर सिग्नल ये है, और ड्यूटी साइकिल जो हमारी फजी से निकलती है वो ड्यूटी साइकिल यहाँ पे 30 वोल्टेज इनपुट 30 है, उसके हिसाब से फजी ने डिसीजन लिया कि हमारा रेफरेंस वोल्टेज 30 रखने के लिए हमको ड्यूटी साइकिल इतनी होनी चाहिए। ठीक है ना, फजी ने डिसीजन लिया। ठीक है, अब रेफरेंस वोल्टेज हम कितना दे रहे हैं, 30, और ये जो एवरेज वोल्टेज आ रहा है, ये देखिए एवरेज वोल्टेज आपका ब्लू कलर दिखा रहा है कि इसको लगभग ट्रैक कर रहा है। और जो पल्स रिपल्ड वेवफॉर्म जो आउटपुट में बनेगी डीसी के बीच में विथआउट फिल्टरिंग और स्मूथनिंग, ये वाली वेवफॉर्म बनेगी। तो रेफरेंस जो हमने 30 वोल्टेज दिया और जो एवरेज वोल्टेज आ रहा है वो लगभग सेम आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को क्लियर हुआ ना कि कैसे फजी हमारा काम कर रहा है। अब यहाँ से हम चेंज करते हैं 60 डिग्री। ठीक है, 60 वोल्टेज रेफरेंस 60। तो उस कंडीशन में हमारा यहाँ पे क्या हुआ, देखो ड्यूटी साइकिल हमारी बढ़ गई। ठीक है,
सॉरी ड्यूटी साइकिल घट गई, और जो रेफरेंस 60 का हमने दिया, और जो आउटपुट एक्चुअल एवरेज है वो ट्रैकिंग कर रहा है इसको। ठीक है, ये दिख रहा है आपको? स्टूडेंट्स, यस सर। ये देख रहे हो ना? यस सर। तो ये जो ट्रायंगुलर सिग्नल है वो 0 से पाई में 2 ठो आएंगे, ठीक है ना, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी डबल है, मतलब यहाँ से 0 से पाई में ये 2 बार 0 जाएगा, ठीक है ना, हाँ, समझ गए? 90 डिग्री की साइकिल में 2 पल्स आ रही हैं। हाँ, तो ये पाई साइकिल पाई डिग्री पे एक बार मैक्सिमाइज होगा, फिर 0 से पाई में फिर मैक्सिमाइज होगा। ठीक है, तो हमारी जो कंट्रोल एल्गोरिथम है वो कैसी है? सिंपल, मतलब कन्वर्टर की जो पूरी स्कीम है वो सिंपली ये है कि यहाँ से हमने सिग्नल को लिया, साइनोसॉइडल सिग्नल सेंस किया, और ग्रेटर है तो ये पल्स यहाँ पे देगा, अगर स्मॉलर है तो यहाँ पे पल्स देगा, मतलब निगेटिव हाफ साइकिल में। अब यहाँ से भी रेफरेंस हमने दिया, तो ये FIS क्या करेगा? एक ड्यूटी साइकिल बनाएगा यहाँ पे, जब भी हम रेफरेंस वोल्टेज देंगे तो ड्यूटी साइकिल बनाएगा। ठीक है, ये ड्यूटी साइकिल हमने कोडिंग से रिलेशन से निकाला है पूरा, कि हमारा भी एवरेज कैसे बदलता है अल्फा से, ठीक है ना। अल्फा अल्फा जो है वो डी से रिलेटेड है, ठीक है ना, बिकॉज क्योंकि डी इक्वल टू अल्फा अपॉन पाई। ठीक है, तो यहाँ पे ड्यूटी साइकिल जो है, अगर अल्फा इक्वल टू पाई तो ड्यूटी साइकिल 1 होगी। कंडीशन में पूरी मतलब लास्ट में पाई में ही पल्स बस आएगी। ठीक है, जिस कंडीशन में अगर हम ड्यूटी साइकिल, अगर हम यहाँ कहते हैं कि ये हमारा ट्रायंगुलर है और हमको पल्स, अगर यहाँ पे ड्यूटी साइकिल हम 1 ले लेते हैं तो हमारी सिर्फ इतना पूरा छोड़ के पल्स सिर्फ पाई पे आएगी। ठीक है ना, तो उस कंडीशन में वोल्टेज हमारा 0 हो जाएगा एकदम। ठीक है, तो ये हमारा FIS क्या कर रहा है? अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस वोल्टेज FIS इज टेकिंग ए डिसीजन, ठीक है ना, कि हाउ द ड्यूटी साइकिल हैज टू बी डिसाइडेड। जो भी रेफरेंस हम वोल्टेज देंगे उसके अकॉर्डिंग ये ड्यूटी साइकिल बता देगा। ठीक है, तो जब ये ड्यूटी साइकिल बताया तो इसमें 2 एंड ऑपरेशन है, पॉजिटिव के साथ में, पॉजिटिव साइकिल में जो पल्स मिल रही है उसके साथ में, एक निगेटिव पल्स है निगेटिव साइकिल में, उसके साथ में एंड ऑपरेशन। तो ये वाला T1 T4 को ऑपरेट करेगा और ये T2 T3 को ऑपरेट करेगा। ठीक है, तो ये हमारी सिंपली क्या है? कन्वर्टर कंट्रोल स्कीम, और ये हमारा हो गया इंटेलिजेंट कंट्रोलर। इंटेलिजेंट कंट्रोलर हम कैसे बनाए? हमने सबसे पहले एक डिपेंडेंसी बनाई कि अल्फा पे V एवरेज कैसे डिपेंड करता है, फिर हमने पूरा उसका ग्राफ लिया। ठीक है, ये वाला ग्राफ लिया VO। ठीक है, और ग्राफ लेने के बाद जो हमारा आया उसको हमने पार्टीशनिंग की। पार्टीशनिंग में हमने जैसे 5 मेंबरशिप फंक्शन बनाना है तो हमने 5 पॉइंट्स लिए, 2 एंड में हो गए, एक सेंटर में हो गया, फिर एक और जगह कहीं पे ले लिए जहाँ पे मैक्सिमम कर्वेचर हो रहा है वहां पे ले लिए। ठीक है, तो 5 मेंबरशिप फंक्शन बनाने हैं हमको, तो 5 पॉइंट्स हम लेंगे उसमें। ठीक है, क्लियर? हमें यहाँ 5 मेंबरशिप फंक्शन 1 2 3 4 5 मेंबरशिप फंक्शन बनाने थे, तो हमने एक सेंटर में लिया, सिमेट्रिक रखने के लिए सेंटर में लिया, फिर हमने एक जहाँ मैक्सिमम कर्वेचर दिख रही है लगभग वहां पे मैंने ले लिया, फिर यहाँ पे, क्योंकि अगर हम मैक्सिमम कर्वेचर की जगह में नहीं लेंगे तो ये लीनियर टाइप का बिहेवियर आ जाएगा, जबकि ये पूरा वेवफॉर्म नॉन लीनियर है। तो यहाँ पे हम जहाँ कर्वेचर आ रही है, तो देखिए ये पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये तो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया पूरा, ये पूरा लीनियर टाइप का है, लेकिन यहाँ पे चूंकि वोल्टेज कैसा वेरी हो रहा है? नॉन लीनियर। तो यहाँ पे देखो वेवफॉर्म, इसका जो मेंबरशिप फंक्शन का शेप है वो भी नॉन लीनियर टाइप का है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्लस्टरिंग करने के बाद मेंबरशिप फंक्शन बनाए, मेंबरशिप फंक्शन से फिर हमने रियल में एक फजी जनरेट किया ये। ठीक है, फजी विंडो में जाके फजी जनरेट करने के बाद हम देख लिए कि जो आउटपुट डिपेंडेंसी है वो ऐसी आ रही है। यहाँ पे हमने 70 तक हमने इसमें लिया है, यहाँ पे एक्स एक्सिस में दिखा रहा है, वेवफॉर्म पूरा वही है। अब देखिए कि ये पूरा हमारा कन्वर्टर कंट्रोल कर रहा है। हम अगर यहाँ पे
10 वोल्टेज देना चाह रहे हैं 10, तो 10 वोल्टेज की कंडीशन में हमारा रेफरेंस वोल्टेज 10 होने के लिए जो ड्यूटी साइकिल है फजी ने चेंज कर दिया। ठीक है, उसने जब ड्यूटी साइकिल चेंज की तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो एवरेज वोल्टेज है वो फिक्स हो गया जाके। ठीक है, तो यहाँ पे तो थोड़ी एरर भी दिख रही है यहाँ पे, आप देखिए, क्योंकि हमने अपने मैनुअली बनाया है, मैनुअली पूरा मेंबरशिप फंक्शन को क्लस्टरिंग करके डिफाइन किया, तो यहाँ एक एरर दिख रही है लगभग 1.5 वोल्ट का। ठीक है, क्यों स्टूडेंट्स, 1.5 वोल्ट का लगभग एरर है कि नहीं है? हेलो, यस सर, लगभग 1.5 का एरर है। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे ये जो हम पार्टीशनिंग करके जो वोल्टेज जनरेट करते हैं, ये मेंबरशिप फंक्शन बनाते हैं, उसकी जगह हम अगर न्यूरोफजी यूज करते हैं, इन केस ऑफ वी यूज द न्यूरोफजी, तो हम उसी चीज को जाएंगे न्यूरोफजी एनफिस एडिट पे। ठीक है ना, तो ये विंडोज हम बंद कर देते हैं और देखो ये अभी यहाँ पे कॉलेज में कोई नहीं बताएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंफॉर्मेटिव है, प्रैक्टिकली कैसे आप कन्वर्टर के साथ में इंटेलिजेंट कंट्रोलर को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आप जब आप यहाँ जाएंगे एनफिस एडिट, ठीक है, तो ये खुला आपका। अब यहाँ पे हमने एक लिया था, देखो यहाँ पे एक ये बनाई थी ना हमने फाइल कि ड्यूटी जो रिफरेंस वोल्टेज है इनपुट है और जो ड्यूटी साइकिल है वो आउटपुट है। ठीक है, ये हम यहाँ पे डेटा लिए थे, इसने बहुत सारा डेटा प्लॉट किया है। ठीक है, ये हमने एक ही डेटा में यहाँ पे रख लिया। कैसी कोडिंग की थी हमने, उस कोडिंग के लिए हमने फजी आईओ बनाने के लिए जो भी रो वेक्टर आ रहा था उसको हमने कॉलम वेक्टर में चेंज कर लिया और दोनों को साथ में रख दिया, तो अलग अलग दोनों कॉलम इकट्ठा आ गए। ठीक है, क्लियर? बीच बीच में आप लोग रिस्पॉन्स देते रहिए तो हमें लगे कि हाँ ठीक है। तो ये हमारा आउटपुट हो गया, ये मतलब हमारा वर्क स्पेस फाइल आ गया। अब यहाँ हम ट्रेनिंग डेटा लेते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ नहीं करेंगे, ये वाला हम एनपीसी एडिटर खोलते हैं, ये अपने आप सब बना देगा। इसमें हम जो वर्क स्पेस है वहां से लोड डेटा करते हैं। लोड डेटा में कौन सा, फजी IO, ये डाल दिए। ठीक है, ये डेटा हमारा आ गया। ठीक है, ये ड्यूटी साइकिल वेरी हो रही है और आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे, ये मतलब दोनों को एक्स और वाई डेटा के प्लॉट्स वो यूज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रिड पार्टीशनिंग डिफरेंट टाइप की वो है, और इसमें हम 5-5 मेंबरशिप फंक्शन दोनों में कह देते हैं कि हाँ दोनों में 5-5 मेंबरशिप फंक्शन होने चाहिए। और ट्रायंगुलर मेंबरशिप फंक्शन कांस्टेंट नहीं, यहाँ पे लीनियर मेंबरशिप फंक्शन हमने डिफाइन कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे FIS जनरेट हो गया, जनरेट FIS। ठीक है, तो जनरेट हो गया। अब यहाँ हम कितने एपॉक्स मतलब कितने डेटा ट्रेन करेगा, लगभग ये 150-200 के लगभग आसपास है। यहाँ पे हम 200 डाल लेते हैं, 200 ट्रेन। ठीक है, यहाँ पे ट्रेन हो गया। ट्रेन होने के बाद जब ये ट्रेन हो गया तो हम यहाँ से देख लेते हैं कि एरर कितनी दे रहा है। ट्रेनिंग डेटा के साथ में जो इसका आउटपुट है वो कितना दे रहा है, यहाँ पे देख लो। रेड वाला जो है तो जो फजी न्यूरो फजी का आउटपुट है वो है, और जो ब्लू कलर वाला है वो एक्चुअल इनपुट आउटपुट डेटा है। ठीक है ना, अब यहाँ पे जो आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, न्यूरल स्ट्रक्चर, कि एक इनपुट का और एक आउटपुट का है। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये देखिए कि जो सरफेस है वो थोड़ी चेंज हुई, थोड़ा स्मूथ है। आप जब ट्रेनिंग से किए तो वही सरफेस एक्चुअली को बिल्कुल एक्चुअल को फॉलो कर रही है लगभग। ठीक है, ये ज्यादा मतलब परफेक्ट दिख रही है। ठीक है, अब इसको हमने ये पूरा जो हमारा बन रहा ये फाइल, ठीक है, ये एक तरह से हम देखेंगे अगर तो FIS प्रॉपर्टीज यहाँ पे अपने आप बन गई है। देखो यहाँ पे 5 मेंबरशिप फंक्शन बन गए इनपुट में, और आउटपुट में भी 5 मेंबरशिप फंक्शन बन गए अपने आप। ठीक है, और इनका अपने आप डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है।
तो इसको हम एक्सपोर्ट कर लिए, ये अपने आप बना है, ठीक है, इसको हमने नहीं बनाया है, ट्रेनिंग किए तो अपने आप बन गया ये। अब इसको हमने एक्सपोर्ट कर लिया ये वाली फाइल में, ठीक है। ये जब हमने ट्रेन कर लिया है यहाँ पे, इसको फाइल में नो किया। अब अगर हम सेम इसकी जगह में यहाँ पे उस फाइल का नाम डाल देते हैं, ओके, तो जो परफॉर्मेंस है वो देखना, हम पहले कितना डाले थे 30 के लिए परफॉर्मेंस में एरर थी वहां पे देखिए, पर इसमें एरर नहीं है। आप देखिए स्टेडी स्टेट एरर इसमें ट्रेनिंग वाले में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा अच्छे से ट्रेन हुआ है। शिवम, अदर स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? ये देखो 30 वोल्टेज के लिए, 30 रिफरेंस वोल्टेज के लिए यहाँ पे कोई एरर नहीं है, बहुत ज्यादा एरर नहीं है। लेकिन अगर हम इसी को यहाँ पे ये ट्रेंड वाला नहीं देते हैं, नॉर्मल वाला देते हैं जो हमने बनाया था, उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे देखिए स्टेडी स्टेट एरर ज्यादा है ना स्टूडेंट्स? क्लियर है यहाँ पे कि नहीं? आपने मैनुअली बनाया है और एक ट्रेन करके डायरेक्टली बनाया है। तो आपने एक में नॉलेज बेस और रूल बेस मेंबरशिप डिजाइन किया, मेंबरशिप फंक्शन डिजाइन किया, एक में ट्रेनेबल बिहेवियर यूज किया है न्यूरल नेटवर्क का फजी के साथ में, तो उसमें डेटाबेस यूज किया आपने। तो डेटाबेस कैसे आपने जनरेट किया? उसी फार्मूले से, ओके। तो नॉलेज बेस, डेटाबेस, और ये यहाँ पे देखिए एरर है, 30 ही रिफरेंस था लेकिन यहाँ पे एरर है। आप देख सकते हैं कितने का एरर है, लगभग 2.5 का, 5 ये हो गया, 4 का एरर है लगभग, ठीक है। जबकि हम इसमें अगर न्यूरोफजी से देते हैं, न्यूरोफजी वाले में अगर हम देते हैं, तो ये एरर कितनी आती है, लगभग तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा इस टाइप का, तो आपके पूरी कंट्रोल स्ट्रक्चर और स्टेप्स कैसे हम पार्टीशनिंग करेंगे, ठीक है, और क्या इनपुट आउटपुट का रिलेशन है, ये सब लिखना पड़ेगा उसमें। तो ये आप देखिए कि जब हम ट्रेनेबल बिहेवियर यूज किए, ट्रेंड न्यूरोफजी, तो उस कंडीशन में आप देखिए कि जो स्टेडी स्टेट एरर है वो कम हो गई, ठीक है। ये देखिए कितना है ये स्टूडेंट्स, कैन यू सी द एरर? लगभग 1.5 के बराबर है ये, जबकि रिफरेंस वोल्टेज सेम था, और यहाँ पे हम डायरेक्टली सेल्फ डिजाइनिंग की जगह हमने न्यूरल नेटवर्क को यूज किया है। ये देखो, ठीक है, क्लियर है? हेलो स्टूडेंट्स, प्लीज रिस्पॉन्ड। हेलो, यस सर। Yes, sir. हाँ, तो हाउ वाज द लेक्चर? Informative, sir. तो आप कोई भी इंटेलिजेंट कंट्रोलर को यूज करना हो, तो आपके पास डेटा सेट हो तो आप ट्रेन करके यूज कर सकते हैं, या कि नॉलेज बेस हो तो आप रूल वगैरह बना के और एक फजी बना के। एक्चुअली इसमें क्या होता है, एक्चुअली जब भी हम कंट्रोलर डिजाइन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे
अल्फा वेरी कर रहे हैं हम, तो हम देख लिए कि डिपेंडेंसी कैसी है अल्फा के साथ में आउटपुट वोल्टेज की। अब जब भी हम रेफरेंस वोल्टेज देंगे तो ड्यूटी साइकिल चेंज होना चाहिए। तो जो हमारा एज अ फंक्शन आ रहा था कि मतलब अल्फा वेरी हो रहा तो वी आउटपुट ये आ रहा है, तो हम उसको आउटपुट वोल्टेज को हम ले लेते हैं कि वी रेफरेंस हम इतना देंगे तो ड्यूटी साइकिल इतनी होनी चाहिए। मतलब हमारा जो इनपुट है फजी में वो होना चाहिए वी रेफरेंस, ठीक है ना, एवरेज वोल्टेज की वैल्यू, और आउटपुट होना चाहिए ड्यूटी साइकिल। पर एक्चुअली फंक्शन में क्या निकल रहा है कि हम अल्फा वेरी कर रहे हैं या कि ड्यूटी साइकिल वेरी कर रहे हैं, तो वो फायरिंग एंगल चेंज हो रहा है और एवरेज वोल्टेज चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये स्टेप्स समझ में आ गए हैं। सबसे पहले हम क्या किए थे, सबसे पहले सिंपली हमने एक ये बनाया, क्या, सिंगल फेज फुल कन्वर्टर का मॉडल, ठीक है, सिमुलिंक मॉडल। यहाँ पे एसी सिग्नल दे दिए हमने, एक रजिस्टिव थोड़ा सा एल लोड दिए हैं सिंपली 1 मिली हेनरी का, ठीक है, और आर इक्वल टू 100 रखा हमने। तो यहाँ पे ये लॉजिक बनाया हमने कि जब भी ग्रेटर देन होगा तो पॉजिटिव के लिए सिग्नल देगा ये वाला, और ये निगेटिव के लिए सिग्नल देगा। अब जब भी ड्यूटी साइकिल वेरी होगी तो अकॉर्डिंग टू ड्यूटी साइकिल वो एक पल्स देगा, ठीक है। तो जैसे जैसे ड्यूटी साइकिल बढ़ती जाएगी पल्स पीछे को शिफ्ट होती जाएगी, ठीक है ना, फायरिंग एंगल डिले होता जाएगा। ओके, तो ड्यूटी साइकिल बढ़ने का मतलब फायरिंग एंगल डिले होना, मतलब कि रेफरेंस वोल्टेज मतलब वोल्टेज आउटपुट कम होते जाना, ठीक है। तो जितना हम रेफरेंस वोल्टेज देते जाएंगे कि हमें 30 चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग ये ड्यूटी साइकिल की वैल्यू बना देगा ये फजी स्टेज। ओके, और यहाँ पे हम लॉजिक दे दिए, क्लियर है। और ये जो फजी स्टेज है इसमें हम एक फाइल वो करेंगे, तो इसमें हम फाइल तभी हम दे सकते हैं जब हम पहले यहाँ पे इस एडिटर में जाके या तो हम फजी खोलेंगे, जो ये बिना ट्रेंड वाला फजी होता है, फजी से केवल बिना ट्रेनिंग वाला खुलता है, इसमें डिजाइन करना पड़ेगा। अगर हम एनफी से एडिट खोलेंगे, ठीक है, तो इसमें ट्रेनेबल वाला खुलता है, इसमें हम डेटा सेट के अकॉर्डिंग ट्रेन करके और फजी बना सकते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारा यहाँ से अल्फा वेरी हुआ, फिर हम यहाँ वी एम इक्वल टू, वैसे इस कोड की ज्यादा जरूरत है नहीं, इस कोड की आपको जरूरत ज्यादा है नहीं, तो लीजिए हम इसको डिलीट मार दिए, ठीक है। तो यहाँ पे वी एम इक्वल टू 100 मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू के अकॉर्डिंग अल्फा जब ऐसा वेरी हो रहा है तो अल्फा वेरी होने से ये हमारा क्या होगा, एवरेज वोल्टेज के फार्मूले से ये आ जाएगा, ठीक है ना, फॉर रजिस्टिव केस। फुल कन्वर्टर के लिए रजिस्टिव केस में भी यही फार्मूला लगेगा। अब डी ट्राई हमारा जो है वो अल्फा बाई पाई है, मतलब पाई एंगल जाएगा तो आउटपुट क्या होता है, पाई हो गया अल्फा, ठीक है ना, पाई डिग्री जैसे क्रॉस होगा तो आउटपुट एंगल अल्फा है, मतलब पाई पीक वैल्यू है एट पाई टाइम एक्सिस, ओके, पाई एंगल। तो ड्यूटी साइकिल क्या बनेगी, अल्फा बाई पाई, किसी भी एंगल अल्फा पे अल्फा बाई पाई ये ड्यूटी साइकिल बनेगी। तो जहां पाई पहुंच गया है फायरिंग एंगल वहां पे ड्यूटी साइकिल 1 होगी, क्लियर है। और यहाँ से हम प्लॉट करते हैं डी ट्राई, मतलब ये एक्स एक्सिस में और वी एवरेज वाई एक्सिस में, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे देखो फजी इनपुट आउटपुट, यहाँ हम डेटा सेट बना लेते हैं, ये हमारे फजी ट्रेनिंग के काम आएगा, ये फजी ट्रेनिंग के लिए है, ये चीज फजी ट्रेनिंग के लिए है, और ये चीज हमारी क्लस्टरिंग के लिए है, ठीक है। तो क्लस्टरिंग जब हम यूज करते हैं तो इस ग्राफ का उपयोग करते हैं हम, जैसे यहाँ से हमने एक ग्राफ को कट कर लिया, ये ग्राफ को कट करके फिर हम यहाँ से इस पे पूरा ले जाके उसको और मैनुअली पूरा क्लस्टरिंग करके बनाते हैं, ठीक है। यहाँ से जैसे ये हमारा यहाँ मैनुअली हमने पूरा बनाया है, तो यहाँ एक बीच में सेंटर पॉइंट लिए, ठीक, हर एक रेक्टेंगल का दूसरे रेक्टेंगुलर से यहाँ कोना टच होगा, ठीक है ना। तो ये एक सेंटर पॉइंट हमने लिया, एक दूसरा ये सेंटर पॉइंट यहाँ पे लिया, और फिर उसके बाद हम जहाँ कर्वेचर है वहां भी एक एक ले लिए, 5 मेंबरशिप फंक्शन के लिए 5 पॉइंट लिए, क्योंकि एक पीक वैल्यू, दूसरी पीक वैल्यू, तीसरी पीक वैल्यू, चौथी पीक वैल्यू और फिफ्थ। तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट,
4 पॉइंट 5 पॉइंट, ठीक है। ऐसे ही अब उसको एक जो पिक पॉइंट्स हमने सेंटर लिए, सेंटर को आप यहाँ प्रोजेक्ट कर लीजिए और जो ये ब्लॉक का मैक्सिमम वैल्यू है दोनों साइड एक्सटेंड कर दीजिए, एक मेंबरशिप फंक्शन बन जाएगा। तो ऐसे हम क्लस्टरिंग करके और फजी मेंबरशिप फंक्शन बना लेंगे। इसके बेस पे हम एडिटर पे जाके और यहाँ पे इनपुट आउटपुट का हम फजी डिजाइन कर लेंगे, ठीक है। 5 मेंबरशिप फंक्शन मिला लेंगे और वो कर लेंगे। ये बनाने के बाद को एक्सपोर्ट कर लेंगे, नहीं सेव कर लेंगे, एक्सपोर्ट करना ही सेव है। इस फाइल को ले जाके हम कहाँ सिमुलेशन फाइल में यहाँ पे नाम डाल देंगे। अब जब भी आप चेंज करोगे रेफरेंस वोल्टेज तो आउटपुट वोल्टेज यहाँ चेंज होता रहेगा। तो आई थिंक today's lecture was comparatively more informative as per my view.